राधे गाइस। आज सदियों के बाद क्लास जा रहे हैं ऐसा लग रहा है। वो भी मैं ब्रेकफास्ट करके जा रहा हूँ। आज सब ब्रेकफास्ट किए, सुबह उठ के थोड़ा अपना कर लिए जो करना था। पूरे 2 दिन बर्बाद करके क्लास जा रहे हैं, इसलिए ऐसा लगता है सुबह की फ्रेश नहीं हुआ। बेइज्जती कर दिया जाए। काट दो क्या ये? मतलब आराम से, इमरजेंसी हरवरी में नहीं। गुड मॉर्निंग। This is the answer. Basically, I want if a question is coming in your OSCE or any of your question, what is the biochemical basis? It is going to be this. Either there is an accumulation of the reaction. 40 is the biochemical. 41. प्रेजेंट मैम। जी मस्त सोया भाई। These are the reports from the patient that we are considering right now. The reports are submitted over post-surgery injection and we have treatment graduate. Can you give this? Doctor, the patient's temperature has spiked to 39 degrees Celsius. Also, the wound site looks inflamed. The antibiotics that we have been prescribing to him and we have been administering to him have zero to no effect at all. And the blood culture media reports indicate that the patient is suffering from some sort of bacterial infection. So, we have to introspect the antibiotic regimen for a broader perspective for the patient's wound. Okay, we have to start a better treatment and monitor the closely for the next level. Ask the nurse to take the closer look to his intake and output, and so yourself take the medical history of the patient and see if there is an underlying condition that are affecting the recovery. We are taking our steps and monitoring closely and we detected the full infection clearly, so it will be fine. Doctor, doctor, nurse, please आओ. Doctor. তুমি ইয়াৰ বাইকত চেক কৰি লোৱা পাছত মোক লাগিব ন। আমাৰ ইয়াতে ইমাৰ্জেঞ্চি বহুত পেচেণ্ট আছে ন, তো প্ৰায়ৰিটি ৱাইজ দেখিব লাগে। তো তোমাৰ এইটো ইমান ইমাৰ্জেঞ্চি নহয়, ইমান চিৰিয়াছ নহয়, এইটো পেটত বিকাশটো এইটো গেছ হ'ব পাৰে। তো মই অলপ টেষ্টটো কমি যাব।
টোপনি যাব কিন্তু কেঞ্চেল কৰিব নালাগে ন On analyzing administration's poor perspective, the doctors and nurse responses highlights a lack of empathy and communication. The doctor dismisses the guardian's frustration instead of addressing it, and the nurse seems overwhelmed with no solution to the problem, conveying how administrative issues can hinder patient's care. Guardian's frustration. The guardian's perspective shows how crucial effective communication and proper care are. The lack of attention from the hospital staff leads to feeling of neglect and lack of trust in the system. This role play highlights how administrative and leadership shortcoming in healthcare settings can create a discomfort between the caregiver and patient, leading to dissatisfaction and frustration. Thank you. Okay, 2468. भैया मेरा बहन बीमार है क्या आप देखेंगे आप रिसेप्शनिस्ट है ना तो एक पहले डॉक्टर के पास से आइए फिर आइए ठीक है डॉक्टर साहब मेरा बहन बहुत बीमार है उसका सिर में बहुत दर्द हो रहा है और पॉइजनिंग लगता है क्या देखेगा उसका सिर में दर्द है और पेट में भी दर्द है तो क्या 2 दिन हो नहीं तो आप सीधे यहाँ पे कैसे आ गए? उसने पे लाना चाहिए था ना फोन। उसने बोला था किसने बोला? रिसेप्शनिस्ट नहीं ऐसे नहीं होता, आप जाइए पहले लेके आइए। ठीक है भैया डॉक्टर ने बोला अब क्या संध्या के फॉर्म फिल करके जाना है तो भैया प्लीज नहीं होगा पेशेंट बहुत है लोड बहुत ज़्यादा है आप बाद में आइए डॉक्टर साहब बताएं आप। उसने कहा कि बहुत पेशेंट्स ज़्यादा है तो तुमको बार बार बोलना पड़ेगा तुमको समझ में नहीं आता एक बार चलो ना काम करके लेके आओ समझ में नहीं आता तुमको जाओ बहुत चक्कर आ रहे हैं डॉक्टर हमारा रूल्स होता है ऐसा नहीं होता है काम करके लेके आओ ऐसा थोड़ी होता है नेचर या डॉक्टर इसको बहुत चक्कर आ रहे हैं थोड़ा देखिए अच्छा आपने कुछ खाया? फूड पॉइजनिंग है तो बाहर का खाओगे तो यही होगा ना। हाँ यहाँ आके फूड पॉइजनिंग है। क्या हॉस्टल का फूड खाया है तुमने इसीलिए तो ऐसा हालत है तो हॉस्टल का फूड थोड़ा कम खाओ उसको मालूम अभी कैसा लग रहा है चक्कर आ रहे हैं पिछले 3-4 दिन से।
चक्कर आ रहे हैं तो क्या किया? बाहर जाके खाना खा लिया? हाँ, हॉस्टल का ही खाया था। खाया और फूड पॉइजनिंग हो गया। फिर क्या किया आपने उसके बाद? हॉस्टल का ज्यादा आलू खाएंगे तो ऐसा ही होगा ना। ठीक है, जाइए, ठीक हो जाएगा। हफ्ते 10 दिन में ठीक हो जाएगा। ठीक है। मेडिसिन तो दीजिए। मेडिसिन क्या दूँ? आप खुद ही बाहर का खाते हो, घूमते फिरते हो, मैं क्या दूँ? है ना? ऊपर से तुमने फॉर्म भी फिलअप नहीं किया। ऐसा थोड़ी रिसेप्शन वाले ने दिया ही नहीं, वो लोग बोल रहे हैं फीस लोड। हाँ, तो वो उसका दिक्कत है, हमारा थोड़ी है। हमारा ऑफिस का सुधा है। ठीक है, रहने दीजिए। अब हम कुछ नहीं कर सकते, आप खुद का देख लीजिए। बिकॉज इतने भी मेजर इशूज नहीं है आपको, है ना? तो आप जा सकते हो। चलो, इतना हम बोल ही रहे हैं तो थोड़ा चेक कर दो, कोई बात नहीं। डॉक्टर को इससे नहीं होता है। डॉक्टर ऐसा কামত আপোনাৰ ব্যৱহাৰত আপোনাৰ পইচা এটা কথা কৈছে দ্যাট ড্ৰেছ নট মেন এ মেন পাৰফেক্ট বাট ডেট মেন পইচা নহয় ব্যৱহাৰ মানুহৰ ये क्या चल रहा है? यार मेरा बहन बीमार है और आप रील चला रहे हैं। क्या डॉक्टर ऐसा करना चाहिए? ये क्या है? So as you can see in the first scene, due to the bad attitude of receptionist and as well as the doctors, the patient was left untreated. So in the following scene, we are showing the good side of doctor. भैया, मेरा बहन यहाँ बहुत बीमार है, क्या आपको देखिए ना इसको? हाँ, ठीक है, मैं फॉर्म देता हूँ तुमको। ये लेके जाए, वो सेकंड फ्लोर में जाए, उधर थर्ड जो वार्ड है उसमें चले जाए। ठीक है सर। कैसे आना होगा? क्या नाम है आपका? अनामिका? कहाँ से आए हो आप? क्या करते हो आप? स्टूडेंट हो? बताइए क्या दिक्कत है आपको? Have you vomited or had some blood in the stool? Regular? Okay. लास्ट 2-3 दिनों से या 2 दिन? ठीक है, मैं कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहती हूँ, क्या नहीं? Electrolytes and antibiotics चाहिए। पानी पी रहे हो आप? प्लीज पानी लीजिए। आपने वॉमिटिंग किया है ना, तो काफी डिहाइड्रेशन फील हो रहा है। और कुछ कॉम्प्लिकेशंस आपको महसूस हो रही हो वीकनेस के साथ में?
ऐसा ही है ना? आप एनीमिक, आपने आपका ब्लड रिपोर्ट ऐसा कुछ कराया आपने? नहीं कराया, ठीक है। कुछ कहना चाहते हैं आप कुछ कहना चाहते हैं? कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हैं, कोई इशू नहीं है, प्लीज़, ठीक है। डॉक्टर जी बहुत धन्यवाद आपको, गवाह के तरह समझते हो। अगर आपको दवाई लेने के बाद भी अगर कोई भी इम्प्रूवमेंट नजर आए तो प्लीज़ बी श्योर कि आप वापस आए और हमें दिखाएं, ठीक है। So as you can see in the scene, the doctor as well as the receptionist behaved well, and so the patient could get a better treatment. A doctor should exhibit professionalism, compassion, and strong communication skills while maintaining ethical integrity. They must treat patients with empathy, listening attentively to their concerns, and explaining diagnosis and treatments clearly. Upholding patient confidentiality and making decisions based on medical ethics is essential. A good doctor remains calm under pressure, demonstrates patience, and provides reassurance, especially in stressful conditions. They should also stay updated with medical advancements to offer the best possible care. Respecting colleagues, hospital staffs, and patients equally fosters a positive and supportive healthcare environment. Ultimately, a doctor's behavior should reflect dedication to their patients' well-being and a commitment to ethical medical practice. Thank you. So it's a story of three siblings. We have patient Rupali Das and two of her siblings as attendant, Shahanur and Prachi. Starting with the bad perspective, we have doctors Rishi Agarwal and Rashmi Singh. So the story goes on something like that. नमस्ते डॉक्टर। क्या प्रॉब्लम है आपको? मेरी बहन है, ये कुछ दिनों से बहुत बीमार है, कमजोर भी हो रही है, डायबिटिक भी है, सिर भी चकरा रहा है इसका। तो आपने डायबिटीज चेक कराया था इससे पहले कब? हमारे घर में ग्लूकोमीटर है, उसे चेक कराया था, तो वो सुबह फास्टिंग में था तो 180 था। अच्छा, यूरिनेशन फ्रीक्वेंसी क्या है? पेशाब कितनी बार जाते हैं आप? वो तो बहुत बार जाते हैं, पूरा रात मुझे जगह जगह क्लिक जाती है। तो मैं क्या काम करता हूँ, आपको 2 टेस्ट लिख दे रहा हूँ, आप वो करा के आइए पहले, फिर बात करते हैं, ठीक है? उड़दा खराब लग रहा है। वो क्या आपके बहन को है ना किडनी फेलियर हो गया, बोले तो गुर्दा उर्दा जो है ना वो खराब हो गया अभी। तो हाँ, ये कैसे? ये तो ओवर मेडिसिन लेती थी। कैसे किडनी फेलियर हो गया कैसे? अब क्या हमें किडनी देना पड़ेगा? अरे मेरा तो शादी भी नहीं हुआ अभी तक। कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? हाँ, मैं तो आपको यही बोलूंगा कि आप डायलिसिस शुरू कर दीजिए जल्दी से, है ना, यही एक उपाय है इसका। हमारी मम्मी कंडीशन ठीक नहीं है, हमारे पापा भी नहीं है, हम कैसे करेंगे इसे? मैनेज नहीं हो पाएगा हमसे। क्योंकि ये जो टेस्ट है ये हमारे जमाने से चलता आ रहा है, तो आपको करवाना ही पड़ेगा ये। ऐसे तो हम कंगाल हो जाएंगे। So we see how the patients and the family got dissatisfied because of the doctors. So up next we see how the good perspective can help out. We have two doctors, Dr. as Parishmita and Rajshri.
नमस्ते डॉक्टर साहब। हाँ बताइए आप लोग का क्या प्रॉब्लम है? मैडम मेरा बहन का किडनी फेलर हुआ है। 3 महीने से हम डायलिसिस करा रहे लेकिन कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ और इसीलिए हम कंगाल हो चुके हैं। आप लोगों ने वो पहला वाला रिपोर्ट्स लाए हैं? दिखाइए। देखो वही पुराना प्रोसेस, बस क्रिएटिनिन राइज हुआ और डायलिसिस शुरू कर दिया। मेडिकल साइंस बहुत आगे बढ़ चुका है सर। डायलिसिस इज नॉट द ओनली ऑप्शन राइट। देखिए चीज़ें भी अंडर कंट्रोल ला सकती है, इतना हाइपर होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आप लोग को 2 मेडिकेशंस लेके दे रही हूँ कि नए आए हैं, बट आई एश्योर आप लोग हैप्पीली 1 मंथ लेटर आएंगे। आप प्लीज़ इसको कंटिन्यू करिए एंड हैव फेथ। So you see 1 month later how they respond to the prescriptions. ठीक हो गई, बहन बोलने लगी है। नहीं अभी ठीक हो गई। So मैम आपका टायर्डनेस ये सब बेटर लग रहा है आपको? ठीक है, तो आप इसको कंटिन्यू करिए एंड आई फील आप लोग कंफर्टेबल होंगे, सेटिस्फाइड भी होंगे। So with this we see that the doctor who is updated with all the new medications, new processes coming up in the medical field can help out the patient, both economically, mentally, emotionally. The way they have been trained by the initial ones, they could be helped out by the one who is updated and is a lifelong learner, not the stagnant to their degrees and the one books they have studied before. Thank you. We complete here. पहली बार बायोकेमिस्ट्री क्लास में मज़ा आ रहा है। पहला क्लास कैसा था? बहुत बढ़िया। ये नहीं बोलना, बस सच्चाई निकल जाती। क्या नाम है आपका? क्या दिक्कत है आपको? बुखार है, सांस लेने में दिक्कत है और सांस लेने में दिक्कत है, बुखार है, खांसी आ रहा है। कितने दिनों से चल रहा है? हो गया लेकिन 2 हफ्ता हो गया। आपको हेल्थ इश्यूज है और आप ही भूल गए, ऐसा कैसे हो सकता है? आपको ध्यान रखना चाहिए ना इन सब चीज़ों का। तो ये सबके पहले आप इतना दिन से कभी आपने कोई प्रिस्क्रिप्शन लिया क्या? किसी डॉक्टर को दिखाया क्या? हम फार्मेसी में दवाई का वो कुछ पैरासीटामोल ऐसा होगा लेकिन असर नहीं हो रहा है। यही तो दिक्कत है, आप लोग अपने आप से ही डॉक्टर बन जाते हैं, अपने आप ही दवाइयाँ ले लेते हैं। इसीलिए डॉक्टर बैठे हैं ना, उनको प्रिस्क्रिप्शन दिखाना होता है, फिर दवाइयाँ खानी होती है। और सबसे पहले आप ये मास्क लगाइए, ये सिर्फ दिखाने के लिए नहीं रखा है। पूरा ज़्यादा हो रहा है, क्या करें? अभी हम आपको जो प्रिस्क्रिप्शन दे रहे हैं पहले आप वो लीजिएगा और टाइम पे ये सारी दवाइयाँ खाइएगा। और अगर फिर से आपने फार्मेसी से दवाई ले तो फिर यही सब होगा। ये आप 3 दवाई लिखा है लेकिन हमको पता नहीं है कैसे करना है, हम तो भूल जाते हैं। ये दवाइयाँ आपको एक तो सुबह खाना है और एक शाम को खाना है। बाकी जो सारी डिटेल्स है वो सब आपको बाहर नर्स समझा दिया जाएगा, वो सारा काम हमारा नहीं है। बस दवाइयाँ टाइम पे खाइएगा, ये आपको ध्यान रखना है। हम तो सुबह में कैसे जाते हैं, कैसे खाएगा? अभी हेल्थ आपकी है, ध्यान आपको ही रखना होगा ना। काम पे जाते हैं लेकिन दवाइयाँ तो आपको याद रखनी होगी ना, खानी पड़ेगी। इसका ये मतलब थोड़ी कि काम पे जाते हैं तो दवाइयाँ नहीं खाएंगे, वरना फिर से यही होगा कि फार्मेसी से दवाई लेंगे और फिर से हालत खराब हो जाएगी। ठीक है मैम। डॉक्टर लोग अच्छा से ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, दूसरे डॉक्टरों में जाएगा। These scenes highlighted common mistakes in medical communication such as lack of empathy, poor listening and unclear explanation, which can lead to confusion and distress for the patient. Now let's see a role play which showcases a good perspective of communication where understanding, reassurance and clear guidance help the patient feel more confident about the treatment. Here we have Longkuru as patient, Atul Rahman as the doctor and Manish as the patient's brother.
आपको क्या हुआ? कितने दिनों से है? मनीष मुझे देख के लग रहा है कि आपको शायद टीबी हो सकता है। हाँ टीबी आपको मतलब वो सिम्टम देख के लगता है कि टीबी हो सकता है। मैं आपको मेडिसिन दे रहा हूँ 6 महीने के लिए। नहीं ये मतलब रिकमेंडेड है, 6 महीने के लिए खाना पड़ेगा, टाइम पे खाना पड़ेगा। अगर आपने छोड़ दिया मेडिसिन तो और वर्स हो जाएगा। फैमिली को भी हो सकता है, आप सेफ रखिएगा फैमिली से, आप मास्क पहना के रखिए इसको। And your family can make a huge difference in understanding and managing a serious illness like tuberculosis. The doctor's clear guidance, patient's willingness to listen, and support of a caring family member all contribute to a successful recovery. Thank you. First thing is about the good perspective of the doctor, and the second thing is about the bad perspective of the doctor. Now, the participants for the good perspective are Sandeep, will play the role of the doctor, and Tamanna will play the role of the patient as a daughter, and Shabnam will play the role of the mother, that is the attendant of the patient. Now, for the bad perspective is the doctor is Tombi, the patient is Ume Kulsum, and the attendant is Kishan Soni. Now, the first thing is about the good, bad perspective. हाँ हाँ बोलो बोलो हाँ अरे मैं तो एक हफ्ते से गई भी नहीं पार्लर हाँ स्पा भी नहीं किया हाँ और मेरा स्किन बहुत ज़्यादा डल हो गया है हाँ आ जा पार्टी लेकिन मेरा तो नाइट ड्यूटी है हाँ चलो देखते हैं हाँ वो भी जाएगी है चलो हाँ हाँ पिछली बार तो बहुत मज़ा आया था हाँ चलो हाँ 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 नहीं 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 हाँ 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 चलो देखते हैं हाँ डॉक्टर साहिबा गुड मॉर्निंग। हाँ हाँ चलो चलो आपको दिखाई नहीं दे रहा मैं फोन पे बात कर रही हूँ हाँ हाँ चलो चलो पेशेंट आया है हाँ जी बोलिए क्या दिक्कत है डॉक्टर साहिबा मतलब मेरी बहन को जो है रेगुलरली चेस्ट में पहले भी आपको दिखाया था, मानो इसकी जैसे चेस्ट में कांटे चुभ रहे हैं। हमने पिछली बार भी इस पे बात किया था और मैंने आपको बोला ही था कुछ भी सीरियस नहीं है सब नॉर्मल है। नहीं मैं तो बस ये श्योर करना चाहता था कि मतलब इसको चेस्ट पेन के रिगार्डिंग आगे फ्यूचर में कोई भी दिक्कत ना हो, कोई इशू ना आए। देखिए मिस्टर कृष्णा मेरे पास और भी बहुत सारे पेशेंट हैं जो मेरा वेट कर रहे हैं और हमने सारा टेस्ट कर ही लिया था। मैंने आपको बोला ही था कि सब नॉर्मल है और सब क्लियर ही है। अगर ये ऐसे ही छोटी छोटी बातों पे स्ट्रेस लेती रहेगी तो और ज़्यादा बुरा होता जाएगा। बस आप इनको मेडिसिन अच्छे से दीजिए और ज़्यादा स्ट्रेस लेने के लिए मना कीजिए और मेरे पास ऐसे अननेसेसरी बातों के लिए टाइम नहीं है। कैसे कैसे पेशेंट आते हैं। So as we can see, this was a bad perspective. Now we will go for the good perspective of the doctor. Sandeep, good doctor. Good doctor. गुड मॉर्निंग कैसी हो तमन्ना बेटा?
क्या? डॉक्टर लेकिन मेरा चेस्ट पेन अभी भी थोड़ा थोड़ा होता है। अच्छा पहले ही दिखा चुके हैं। अरे नहीं नहीं, उतना टेंशन नहीं लेना, मैं रिपोर्ट एक बार चेक कर लेता हूँ जो बोला था। सब नॉर्मल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब लगता है ज़्यादा स्ट्रेस लेती हो तुम। मेडिसिन जो मैंने पिछले बार दिया था वो सही से खा रही है? अच्छा, ऐसे तो सब ठीक है, थोड़ा सा बस पे हमारा ब्लड प्रेशर हाई है, बाकी सब ठीक है। लगता है ज़्यादा स्ट्रेस ले रही है, इसीलिए ज़्यादा पढ़ाई का टेंशन हो रहा है। डॉक्टर अभी एग्जाम चल रहे हैं इसलिए। कैसा गया एग्जाम? आपका एग्जाम तो आपको पता ही है। समझ रहे मेडिकल लाइफ में होता है। पहले से तेज कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है, कम हुआ है कि नहीं? अच्छा ठीक है, नहीं वो ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं कुछ मेडिसिन लिख देता हूँ थोड़ा बहुत, और तो एक हफ्ता तक आराम मिल जाएगा पूरा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी थोड़ा स्ट्रेस कम लो, और खेलती होगी नहीं? डॉक्टर एक्चुअली हमारे कॉलेज का इन टाइम इतना कम है, 6:30 को ही बंद कर देते हैं, कुछ मौका ही नहीं मिलता खेलने का। कोई नहीं, थोड़ा खेलने पे भी ध्यान दो, बात करो अपने हॉस्टल से। बाकी सब ठीक है, थोड़ा एक्सरसाइज करो सुबह, और थोड़ा टेंशन कम लो। कहीं घूमने उमने जाती हो कि नहीं? डॉक्टर मम्मी अलाउ ही नहीं करती। थोड़ा कीजिए, ऐसे ध्यान दीजिए, थोड़ा बच्चा स्ट्रेस में भी इसीलिए ये सब हो रहा है, ऐसे कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं मेडिसिन लिख दिया हूँ, बाकी सब ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अब तुम जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर मतलब बाद में फिर से ऐसा चेस्ट पेन हुआ तो फिर? नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगा, मैं दवाई हूँ ना। अगर कोई दिक्कत होगा मैं अपना नंबर, पर्सनल नंबर लिख देता हूँ, तो मेरे को कभी भी कॉल कर सकते हो। As now, medical professional is the foundation of a trustworthy healthcare system. Doctors must uphold ethical standards, show empathy, and continuously improve their knowledge and skills to provide the best care. Maintaining professionalism not only benefits patients but also strengthens the integrity and credibility of the medical profession. Thank you. और मेरे को एक ही चीज याद है, पता है क्या? अभी तो ट्रेलर है, साला सीनियर होता तो कितना ये बात साली कंपनी है। 46, 48, 49, 49, 50, 51, 52, 53, अटेंडेंस हो रहा है। 55, 56, 57, 58, 59, क्या लाए हैं हमारे लिए? थैंक यू। छोड़ के भाग गया, सोच सकती है। हम लोग कब से वहाँ वेट कर रहे थे। ये कौन सा एक्सप्रेशन दे रहा है? फिर भी नहीं पसंद आया। आज इसको देख बना था।
रोड साइड रोमियो नहीं है? दिन भाई आज बहुत अच्छा गया। आज हमने एक्टिंग की, एक्ट नंबर और आज डॉक्टर बने थे। पर्सनल नंबर भी दे दिए किसी को। नहीं वो क्योंकि वो बच्ची डिप्रेशन में थी। वो मरीज जो मेरे पास आई, हाँ, वो डिप्रेशन का शिकार थी। तो उसे ऐसा फील करवाएं पहले कंफर्टेबल कि नहीं ये कुछ नहीं है, ये सब नॉर्मल है। क्योंकि उसको पेरेंट को लग रहा था कि चेस्ट पेन कर रहा है तो इससे हार्ट अटैक मेरी बच्ची को आ सकता है। तो उसको इतना कंफर्ट करवाएं कि उसका टेंशन दूर कर। इसलिए मैंने बोला कि अगर कोई भी थोड़ा सा भी आपको दिक्कत हो आप मुझे कॉल कीजिए। मैंने उसको इसलिए प्रश्न नंबर दिया, ठीक है, और कोई बात नहीं है। बाकी वो सब नाटक ही था, जस्ट नाटक था। बस बोला, प्रश्न नंबर दिया नहीं, ये नाटक में था। ब्लॉग हो रहा है। मैं भी कपड़े चेंज करता हूँ। हाँ गाइस नया शायरी। वो बर्थडे नहीं है ना? हाँ बोल बोल। ठीक है, सुनिएगा थोड़ा। Yes. दिल को थाम करके हाँ, छोटा सा थाम शायरी है, ओके। लेकिन दिल को हाँ, लग जाने वाली बहुत जल्दी। शायरी है। भाई माहौल बनाना तो ऐसे कैसे? ठीक है, सुनाइए सुनाइए। वो करीब ही ना आई तो इजहार क्या करते। अरे वो करीब ही नहीं आई तो इजहार क्या करते। कोई तो आई थी करीब। अच्छा सॉरी। खुद बने निशाना तो शिकार क्या करते। वाह भाई वाह। मर गए पर खुली रखी आंखें, इससे ज्यादा किसी का इंतजार क्या करते। ओए होए होए। अरे वो नहीं है, मेरा तो क्या करे।